और चलिए इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। We would now like to felicitate our esteemed guests on the dais, starting off with our esteemed chief guest, Shri Devraj Singh, Honorable Minister of Textiles, Government of India. I request Srimati Neela Shabira, Honorable Secretary Textiles, Government of India, to kindly do the honors. सर थोड़ा सा हट जाइए पीछे कैमरा। Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. We would now felicitate Srimati Neela Shabira, Honorable Secretary Textiles, Government of India. I request Shri Rajendra Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Government of India, to kindly do the honors. Thank you. May I now request you, sir, to kindly felicitate Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles. Thank you. We would now felicitate Shri Rajinder Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Government of India. I'd request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly do the honors. Thank you so much. I'd now request Srimati Neelam Shami Rao, Honorable Secretary, Textiles, Government of India, to kindly deliver the welcome address. माननीय
केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री वस्त्र मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी, वस्त्र राज्य मंत्री श्री मार्गरेटा जी, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय असम के टेक्सटाइल मिनिस्टर जी, सभी राज्यों से पधारे हुए माननीय मंत्रीगण, साथ ही राज्यों के सचिवगण, मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारीगण, एस्टीम्ड डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरा तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। It gives me great pleasure to warmly welcome you all. बलरामपुर से खबर है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ। रेंजर ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप है। अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग टीम की ग्रामीणों से झड़प हुई। ग्रामीणों ने रेंजर शिवनाथ ठाकुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। रेंजर पर पैसे लेकर कब्जा कराने का आरोप है। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के पंडरी गांव का यह मामला है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। तो बलरामपुर में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। रेंजर ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। तो ये वीडियो भी देख सकते हैं आप, जहां ग्रामीणों में और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनमें झड़प हुई। तो रेंजर पर पैसे लेकर कब्जा कराने का भी आरोप है। Would request other dignitaries on the dais to kindly join him. Ladies and gentlemen, please join me for a round of applause as we unveil this report. Thank you. I request our dignitaries to kindly take their seats. I would now request Shri Pobitra Margarita, Honorable Minister of State of External Affairs and Textiles, Government of India, to kindly share his valuable thoughts with this distinguished gathering. Namaskar. Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Sri Mohan Yadav Ji, Minister of Textiles, Handloom and Textiles, Government of Assam, Sri Urkhau Gaurav Brahma Ji, my colleagues in the Ministry, Secretary, Minister of Textiles, Government of India, Srimati Neelam Shami Rao Ji, Additional Secretary, Minister of Textiles, Sri Rohit Kansal Ji, Economic Advisor, Minister of Textiles, Government of India, Sri Rajendra Kumar Ji. खंडवा में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर इंदौर की सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नया अचीवमेंट करते हुए
भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज़्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुधनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है, और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक या मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल की धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आज 2 दिनों का ये टेक्सटाइल चिंतन मंथन सम्मेलन के रूप में हम रखे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में अधिसंख्यक राज्यों के मुख्यमंत्री, तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटि से धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे भाई
और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी बढ़मा, अब जब बढ़मा ही हों तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहाँ। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी, सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप हम इनके लोन, आपने लोन लिया है, मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है कैडर प्राथमिकता होता है तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा, नायतो हुकुम जी अरुणाचल, संजय सावरकरे जी हमारे मित्र महाराष्ट्र, बलवंत सिंह गुजरात, गजेंद्र यादव जी जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया गया है, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र राकेश सचान जी और हमारी टीम की दोनों डीसी, निफ्ट की डीजी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में फाइबर को देखने वाली पद्मिनी सिंगला जी, अमृत मैम जी और बीना मैम जी जो दोनों डीसी हैं, हमारे सहयोगी जोगेंद्र जी और सभी राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, सचिवगण और खास करके आसाम। आपने चाहे हमारी सेक्रेटरी के वक्तव्य को सुना, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और हमारे एमओएस के द्वारा स्पीच में कि हम यहां क्यों आए हैं। एक तो मैं गुवाहाटी को देवभूमि है, माता कामाख्या ये देवभूमि है, सबसे कहूंगा दर्शन करके जाएं। असम सरकार और पवित्रा जी ने सबके दर्शन की व्यवस्था रखा है, लेकिन आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार अगर देने वाला कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं इस धरती पर कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत
एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था, लेकिन पता नहीं पूर्व की सरकारों से कौन सी नजरअंदाज हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, आपको जान करके खुशी होगी कि आजादी के 77 साल बाद देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 80 टाइम्स 80 बार से अधिक इस नॉर्थ ईस्ट में आने का काम किया। और ये केवल आए नहीं, और मंत्री परिषद के सदस्य कम से जो मेरे पास आंकड़े हैं वो 800 टाइम्स से मोर देन 800 टाइम्स से मोर देन ये 11 साल में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट को। केवल विजिट नहीं किया है, समग्र विकास की प्राथमिकता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनर मंत्रालय की सोच रखा था और नरेंद्र मोदी जी ने केवल सोच नहीं रखा, बल्कि जमीन पर मंत्रियों को भेज करके नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, आसाम के विकास के लिए काम किया। और काम ही नहीं किया, मैं आपको कहूं कि पहले केवल 1 लाख करोड़ भी यहां इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 1000 में ही, और वो भी भेंट चढ़ जाती थी भ्रष्टाचार की। लेकिन आज लगभग 6 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस नॉर्थ ईस्ट के आसाम ये मुख्य द्वार है, यहां हम इकट्ठा हुए हैं। शाम में हम नॉर्थ ईस्ट के एमपी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे और इसके कारण आप देखेंगे कभी 5% का जीडीपी का ग्रोथ होना एक आश्चर्यजनक होता था, लेकिन आज के समय में 12 से 13% का जीडीपी का ग्रोथ है। इसके लिए मैं इन्हें प्रधानमंत्री को, नॉर्थ ईस्ट को तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को, जिन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही बाहर नहीं निकाला, 1.25 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों से मुक्त कराया। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने आसाम को धर्मशाला बना दिया था, लेकिन आज हेमंत बिश्व शर्मा
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी चल रहा है। मैं इसलिए इन बातों को रखा कि नॉर्थ ईस्ट के आसाम से हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये 2 दिनों के चिंतन मंथन में जैसा कि आपने देखा, हम एक तरफ एक्सपोर्ट को देखेंगे जिसकी चर्चा की है। दुनिया में उथल पुथल हुआ टैरिफ को लेकर के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज हमारा जो एक्सपोर्ट था वो अगर हम देखते हैं 24-25 2 साल को अलग अलग नजरों से, तो हमारा ग्रोथ हुआ। और अगर केवल हम मंथ टू मंथ देखते हैं, 2024 नवंबर 2024 25 नवंबर 9.4% का ग्रोथ एक्सपोर्ट में हुआ। एक्सपोर्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमने एक आंकड़ा रखा है जिसकी चर्चा हमारे टारगेट रखा है, और ये टारगेट रखा है राज्यों के बलबूते पर। नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप जिस पीएम मित्रा पार्क की बात हो रही है, देश में छोटे छोटे पार्क 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, इससे अधिक का पार्क नहीं के बराबर। लेकिन प्रधानमंत्री का सोच था इकोसिस्टम बनना चाहिए। अभी हमने 7 पार्क रखा। मैं, हमारी सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे सहयोगी सबों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि NHI का एक प्रोजेक्ट होता है कि अगर प्रोजेक्ट समय के पहले पूरा कर ले तो 5% रिवार्ड मिलता है। तो हमारे पास रिवार्ड यही है कि मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आपको रिवार्ड दे रहा हूं, एडवांस रिवार्ड। महाराष्ट्र में हमारा, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र भी हमें समय पर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री से बात हुई है। यूपी में भी अब काम तेजी से बढ़ चुका है। जो हमारे कर्नाटक में भी हमें यानी 7 पार्कों की गति बढ़ चुकी है। और ये पार्क केवल पार्क नहीं होगा, बल्कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। और जब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मैं अभी देख रहा था कि टेक्सटाइल में अगर 1 करोड़ हम गारमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 से 60 लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन अगर पूरा इकोसिस्टम को हम वहां डाल देते हैं तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 30 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये टेक्सटाइल, और जब मैं इस मंत्रालय में आया, मैं जानने का कोशिश किया कि आखिर रोजगार का मापदंड टेक्सटाइल में होता है तो गारमेंट
मेरा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई राज्य, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हम सुइंग मशीन, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन हम नहीं बनाते, सभी इंपोर्ट करते। तो मैंने तय किया कि जरा देखूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या प्लेटफॉर्म पर है। इंपोर्ट को जब हमने देखा तो 10 साल हमने पीछे यूपीए सरकार को लिया, तो वहां 33 लाख मशीन इंपोर्ट हुआ। मैं 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखा, 1,40,00,000 हुआ, और 24-25 में अकेले 60 लाख मशीन इंपोर्ट हुए। इस मशीन से पता चलता है कि रोजगार का रेशियो, क्योंकि ये मशीन इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन, हमने उषा और सिंगर के काली मशीनों की बात नहीं कर रहा हूं। और आज देश के अंदर हम मिला लेते हैं तो 1 करोड़, हमें 2,06,00,000 मशीनें हो गई मोदी जी के कार्यकाल में। अगर 2,06,00,000 हो गए, 25% मशीनें इसमें लोग निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं, वो भी मशीनें फिर रिकंडीशनिंग होकर के नीचे जाता है। अगर हम केवल 1.76 लें तो भी मिनिमम रिप्लेस को छोड़ भी देते हैं, तो 3 करोड़ से ऊपर का रोजगार हमें मिला है। ये टेक्सटाइल रोजगार के सबसे बड़े केंद्र हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया कि अगर मुझे अभी 15 मिलियन टन मैन मेड फाइबर में सिंथेटिक आ गया, बेस्कोस आ गया, और नेचुरल फाइबर सिल्क, वूल, जूट, कॉटन सारे आ गए। अब तो 3 फाइबर को नए ढंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फाइबर मशीन मेड अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया, और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी
और पसंद करेगी। इम्तियाज जी के फादर को बीमारी के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट